سيدنا وحبيبنا محمد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ہم انجازات ابو بکر کے بارے میں بات کر رہے تھے. ابو بکر کے زمانے میں جو اچیومنٹ ہوئے اس کے بارے میں. تو قرآن کے جمع و تدوین اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم مفصلاً تفصیل سے بات کریں گے بعد میں جب عثمان کا دورہ آئے گا انشاءاللہ تب اس کا ایک مناقشہ ہوگا انشاءاللہ جس میں ہمارے علماء کرام کہتے ہیں قرآن حضرت عثمان نے قرآن پورا یہ کر لیا ہے جلا دیا ہے اور کہتے ہیں حضرت ابو بکر جمع القرآن کا کام انجام دیا ہے. ویسی جو باتیں ہیں جو اصلی باتیں نہیں ہیں یہ وہ قرآن سے بھی ٹکراتا ہے اور تاریخ سے بھی ٹکراتا ہے. اس میں انشاءاللہ تفصیلاً بات کرنی ہے ابھی نہیں. ہم آگے چلتے ہیں حضرت ابو بکر کے زمانے میں. حضرت ابو بکر کا زمانہ کتنا رہا خلیفہ بن کے؟ وہ صرف 2 سال اور 2 مہینے رہے. جی 2 سال 2 مہینے. 60ویں عمر میں وہ خلیفہ ہو گئے. 2 سال اور 2 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی. 2 سال 2 مہینے. سر کتنے تو سال اس زمانے میں خلافت ملی تھی؟ جی آواز نہیں آ رہی ہے تمہاری اسامہ. سر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ محسن کو ایکسپٹ کریے. محسن کا کیا کرے؟ وہ ریکویسٹ ذات السلاسل ہے، گطفان ہے اور ایلا ہے، ابلا ہے، شام ہے، ایسے کچھ علاقے ہیں. وہاں سب اسلامی مملکت کو یا اسلامی خلیفہ کو بیعت کر کے اسلام میں آ گئے اور کچھ لوگ جزیہ دینے کو تیار رہے بغیر بلیڈ بغیر کیا کہتے ہیں جنگ. اور خالد بن الولید جیسے کچھ مجاہدین تھے جو انکار کرتے تھے اس سے لڑنے کو تیار تھے. تو یہ تو ضرور ہے کہ کچھ جگہ جنگیں بھی ہوئی. شام میں بھی کچھ جنگیں ہوئی اور عراق میں بھی کچھ جنگیں ہوئی برائے نام. پھر بھی اس میں بھی غلبہ اسلام کا ہی ہوا. سمجھے؟ یہ ہیں حضرت عثمان کا دور کے جو کارنامے انجازات ابی بکر جسے کہتے ہیں یا اہم اعمال ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی مدت خلافت بہت چوڑی رہی. کتنی؟ 2 سال 2 مہینے. اس کے اندر انہوں نے کیا کیے؟ بہت کام کیے. مگر تاریخ میں اگر آپ پائیں گے تو ان کے انجازات میں یہ سب ہوں گے: ارسال جیش اسامہ، حروب ردہ اور جمع القرآن اور فتوحات شام اور فتوحات عراق. کیا حروب الردہ، اسامہ شام، فتوحات شام. بس اتنا ہی ہے. اور اتنے ہی میں ان کی بیماری ہوئی. ان کی بیماری بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جیسی ویسے ہی بیماری تھی. کہتے ہیں مورخین کہ ایک ہی دن دونوں ایک یہودی کی دعوت میں گئے تھے تو ایسی ایک بکرے کو کھائے. اس بکری کی وجہ سے جو ہے حضور کی بھی وفات ہوئی اور 2 سال کے بعد ابو بکر کی بھی وفات ہوئی. مطلب دہیج بہت شدید تھی حضرت کے خون میں اور بہت باریکی پوائزن حضرت ابو بکر کے اس میں بھی آ گئے ہیں. تو حضرت ابو بکر کی بھی وفات اسی وجہ سے ہوئی. اور کچھ کہتے ہیں ان کو بہت سخت وہ بخار ہوئی، بخار کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے.
कुछ भी हो, दोनों की वफात तो हुई है। इंशाअल्लाह वो आगे इंशाअल्लाह बात करेंगे। अभी हमारा जो मरकूज़ा जो उन्वान है फुतुहात शाम और फुतुहात इराक, उसमें आपके किताब में 20 से ज़ायद सफ़हात हैं। उसमें हर वो कोशे कोशे कोने कोने जो गांव है, देहात है, सबके नाम दर्ज है। आप उसमें पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह। अगर इसमें ये जिसको हमने आपके सामने पेश किए हैं, अगर उसमें कोई शक है, सवाल है, इस्तिफसार है, क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनी उम्र में खलीफा बनाया गया? जी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कितनी उम्र में खलीफा बनाया गया? खलीफा रहे नहीं, 2 साल 2 महीने। नहीं, सुन नहीं रहा हूं। कितनी उम्र में रहे? कितनी उम्र में उनकी वफात हुई? कितनी उम्र में वो खलीफा बने? कौन सी उम्र थी उनकी? जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा 60 उम्र थी, 60वीं। और कितने साल तक रहे सर? 2 साल और 4 महीने। 2 साल 2 महीने। 2 साल 2 महीने 13वीं हिजरी तक थे। हुजूर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 साल के जूनियर थे। जी 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 2 साल के जूनियर थे, मतलब शरीक थे, बचपन के साथी थे, मगर 2 साल के छोटे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 2 साल 2 महीने के बाद उनकी भी वफात हुई। इंशाअल्लाह उसके तफसील अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी फुतहात इराक और फुतहात शाम पे वो हैं। उसमें जो सहाबा को भेजे शाम में और इराक में, उसमें सबसे बड़े वो थे खालिद बिन वलीद थे। अगर खालिद बिन वलीद कहीं भी जाते हैं, एक एतराज़ वो था कि खालिद बिन वलीद इराक में जाते हैं तो वहाँ से शादी कर दें, शाम में जाते हैं वहाँ से भी शादी कर दें। तो बहुत बड़ा एतराज़ उनके ऊपर ये हुआ कि वो हर जगह जाके शादी करते हैं। तो खालिद बिन वलीद बहुत बड़े नेता भी हैं, तो पूरे फौज पे उसका एतराज़ आ गया। तो हज़रत उमर ने, इंशाअल्लाह आगे हम बताएंगे, हज़रत उमर ने जब वो खलीफा बन गए तो खालिद बिन वलीद को वहाँ से उनके कायदे जैश के मनसब से, उहदे से हटाकर एक सादा फौजी बना दिए, मतलब डी प्रमोशन कर दिए। इंशाअल्लाह ये आगे पढ़ेंगे। खालिद बिन वलीद मगर बहुत बहादुर थे, बहुत सिफतमंद आदमी थे, कहीं भी जाते हैं मतलब शादी करते थे। इसीलिए उनके ऊपर अपने जो अतबा हैं, जो पैरवी करने वाले थे, उनका एतराज़ हुआ कि जनाब कहीं भी जाते हैं जनाबत हो जाते हैं। ये सैफुल्लाह का लक़ब उन्हीं के लिए? सैफुल्लाह का लक़ब हमजा को कहते हैं। सर में हमजा सबसे पहला सैफुल्लाह का लक़ब था, मगर इनको भी लक़ब मतलब लोग बोलते हैं सैफुल्लाह, असदुल्लाह, सैफुल्लाह। हाँ हाँ बोलिए। कैसर और वो किसरा से मुराद क्या है सर? हाँ वो है कैसर और किसरा। ये बहुत बड़े वो है ना, क्या कहते हैं, एम्बरातोरिया, क्या कहते हैं एम्बरातोरिया को, साम्राज्य या एम्पायर। सल्तनत। एम्पायर कहेंगे जी, सल्तनत कहेंगे। मतलब उर्दू में क्या कहते हैं, फसी उर्दू में सल्तनत कहते हैं। सल्तनत। अच्छा, वही सल्तनत, वही।
उस दोनों सल्तनत थे, एक फारिस और एक रोम, एक फारिस और एक रोम। और किसरा ईरान के बादशाह थे। ईरान की हुकूमत इराक तक आ गई थी, इराक तक ईरान की हुकूमत थी। वहाँ मजूसी लोगों का गलबा था इराक में। जैसे हमने बताया, इराक में गतफान ऐसे कुछ कबाइल है, अरबी कबाइल है, असल में वो अरबी ही ग्रुप थे। वहाँ मजूसी लोग बहुत जुल्म सितम करते थे। तो खालिद बिन वलीद जब इराक में पहुंचे, बसरा के आसपास के एक देहाती इलाका है गतफान, तो गतफान वाले आके इनसे बता दिया कि यहाँ बहुत जुल्म सितम होता है, इसीलिए जो है हमारी हिफाजत कर ले या हमारी हिरासत के लिए कुछ बंदोबस्त कर ले। तो वहाँ खालिद बिन वलीद शुराहबील जैसे नौजवानों को वहाँ जिम्मा दे के वो ईरान की तरफ चले गए और ईरान से वो दूमतुल जंदल आ गए। दूमतुल जंदल कहते हैं हिजाज के बॉर्डर पे, जैसे राजस्थान और हरियाणा जाके मिलते हैं ना, वैसे दूमतुल जंदल एक जगह है यमन और सऊदी के बॉर्डर में। जहाँ पर लड़ाई होती रहती है बमबारी। हाँ, दूमतुल जंदल में बहुत वो देहाती लोग रहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं बदवी लोग रहते हैं। तो उनके जाने के वक्त जो है वहाँ भी दूमतुल जंदल में भी लड़ाई हुई थी। और उसी खालिद बिन वलीद को फिर शाम की तरफ भेजे अबू बकर ने। मतलब एक ही खालिद बिन वलीद था। खालिद बिन वलीद सब दो जगह गए, पहले इराक में गए और उसके बाद शाम में भी गए। शाम में भी जाके मतलब वहाँ जोर्दान, उर्दन, शाम, फलस्तीन, अबला, कुदस, यहाँ तक पहुंच गए, कुदस तक पहुंच गए हमारे खालिद बिन वलीद। उसी में उनका एतराज हुआ, उनके बीच में उनके जो अतबात थे, पैरवी करने वाले थे, मतलब उनकी शादियां यहाँ शाम में जो नसरानी औरतें से भी होती थी, मतलब मुचा या मतलब शादी करते थे, मतलब कहीं भी जाते हैं शादी करते थे। इसीलिए जो है उनके ऊपर एतराज किए उनके फॉलोअर्स, उनके पैरवी लोग। और जब वापस आ गए तब तक अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात हुई थी और उसके फौरन बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा हो गए। तो खलीफा अबू उमर ने ये जो शिकायत की वजह से उनको उनके ओहदे से हटा के उनको सादा एक फौजी बना दिए। वो तो इंशाअल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं फुतुहात शाम और फुतुहात इराक, ये लोग जो है ना, जो मुसलमान नहीं हुए इराक में और शाम में, दोनों जगह में जो मुसलमान नहीं हुए, वो जिजिया देने को तैयार रहे। जो जिजिया देने भी तैयार नहीं हुए, उन लोगों से लड़ाई भी हुई, शाम में भी और इराक में भी। उस जगह जो जंगे हुई है उसका एक लिस्ट आपकी किताब में है, बहुत बड़ी फहरिस्त। उसको याद करने की जरूरत तो नहीं है, मतलब जंगे हैं वहाँ, ज़ातुस सलासिल, दूमतुल जंदल, उल्लैस, अबला, ऐसे कुछ ये हैं जंगे हैं। वहाँ सब इस्लाम का गलबा था, क्योंकि इस्लाम के नौजवान जो पहले हुजूर के साथ इस्लाम में आए, वो सब बहुत बड़े बहादुर थे। इसीलिए हर जगह, शाम में भी हो, इराक में भी हो, इस्लाम ही का गलबा आ गया
और सल्तनत इस्लामिया में तो हमारे दारुल सल्तनत है मदीना में, वहाँ उसका जजिए का हिस्सा पहुंचने लगा। उसका मतलब ये हुआ जजीरतुल अरब में जो हुकूमत है, जो सल्तनत थी, उसी के मातहत में था इराक की और शाम की हुक्मरानी, समझे। वहां सब उमरा भेजे, उमरा गवर्नर्स को भेजे। ये गवर्नर्स अबू बकर खलीफा के मातहत में थे, और वहां से जो रकम वसूल आता था जिजिया में और ज़कात में, वो दारुल सल्तनत में चले जाते थे, बैतुल माल में। बैतुल माल के जो जिम्मे हैं वो खलीफा जो है अपने पूरे देश, जिसमें इराक भी है, शाम भी है, पूरे देश की भलाई के लिए, उसके क्या कहते हैं, वेलफेयर के लिए वो अलॉट करते थे, हर जगह के लिए अलॉट थे। उसमें जो भी इनकम होते थे हर जगह के लिए के साथ, इंसाफ के साथ देते भी थे। वो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने की बात है। इंशाअल्लाह आगे चल के हम उमर की बात करेंगे। के ज़माने में उमर ने जो है उसको डिसेंट्रलाइज किए, उसे कहते हैं अदम तमरकुज। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अदम तमरकुज। अदम तमरकुज मतलब अबू बकर के ज़माने में सब अबू बकर करते थे। मिलिशिया को भेजना, उनका खाने की जिम्मेदारी, उनके रहने की जिम्मेदारी और उनकी तनख्वाह सब अबू बकर ही करते थे। डायरेक्ट खलीफा ही करते थे। मगर उस उमर के ज़माने में हर शोबे के लिए एक एक दफ्तर बना दिए, एक एक मतलब जिम्मेदार को रखें। बैतुल माल एक जिम्मे, और फौजियात एक जिम्मे में, इक्तिसादियात मालियात मतलब एक जिम्मे में, सभी दीनियात चीजों एक को जिम्मे सिस्टमैटिक कर दिया था। जी, सभी चीजों को सिस्टमैटिक कर दिया था हजरत फारूक ने। हाँ, तो हजरत हजरत फारूक उमर के ज़माने में, हजरत उमर के ज़माने में, अबू बकर के ज़माने में भी सिस्टमैटिक थे, मगर खलीफा के प्रिविलेज में थे। सब कुछ खलीफा ही करते थे, सब कुछ मतलब प्रेसिडेंट थे। जैसे हमारे दीनी मदारिस में होते हैं, सब कुछ मुदीर ही करते हैं। नदवे में राबी साहब ही करते हैं, वहाँ अरशद मदनी ही करते हैं। वैसे मतलब वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, सब एक ही मरकज में, मरकुज एक ही मुदीर होते हैं, एक ही वो क्या कहते हैं, वही वहाँ मंजूरी, बच्चों की मंजूरी भी करते हैं, खाने की भी मंजूरी वही देते हैं। वैसे निज़ाम था अबू बकर के ज़माने में। मगर हज़रत हज़रत उमर के ज़माने में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, सबसे बड़ा काम, सबसे पहले काम को अपने ओहदे से हटा के एक सादा फौजी बना दिया, और दूसरा काम था कि दवावीन को कायम किया। दवावीन कहते हैं डिपार्टमेंट्स, जिसको हम इस जमाने में डिपार्टमेंट्स कहते हैं। डिपार्टमेंट्स को इसकी तश्कील की, वो इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम मतलब बोलते हैं, हम इसी में इक्तिफा करते हैं कि फुतहात इराक और शाम, इंशाअल्लाह उसका खुलासा हमारे उसामा नोमानी साहब करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम क्या बताए हैं उसका खुलासा पेश कीजिए। मैं करूंगा इंशाअल्लाह। उसी कौन करेगा? कोई भी तो कर लो। 14 लोग हैं सर आज सर जी हाँ, बोलिए। आज आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने
فتوحات کافی جنگیں لڑی جس میں شام و عراق کی ہے، وہاں پر انہوں نے خالد بن ولید کو بھیجا تھا ایز ایک طرح کا ہیڈ بنا کر وہاں کے کام کرنے کے لیے. اور بہت ساری باتیں آپ نے آج بتائیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت رہی وہ 2 سال 2 مہینے رہی، اور ان کے انجازات آپ نے کہا اس میں ہے موجود ہیں ہماری بک میں، اور بہت ساری اور چیزیں تھی. یہ جو دیہات جو مطلب جگہ ہے جہاں جنگ ہوئی ہے اس پورے کا فہرست آپ کی کتاب میں ہے، مگر اکثر بیشتر جگہ وہاں جنگ نہیں ہوئی، وہاں کے سسٹم نے کو قبول کیے، اور کچھ لوگ اسلام کو قبول نہیں کیے مگر وہاں کے دارالسلطنت کے خلیفہ کو مانے، وہاں جزیہ دینے شروع کر دیے. تو وہاں کی آمدنی وہاں کی پورے کی آمدنی دارالسلطنت میں آ گئے، اور خلیفہ ہی اس کو بانٹتے رہے ہر جگہ کے لیے عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، آمدنی کے حساب سے نہیں، وہاں کی جو لوگ ہیں وہاں کا جو تقاضا ہے اس کے حساب سے دیتے تھے. کچھ لوگ مطلب بہت کمزور لوگ تھے، عراق میں تو بہت غریب لوگ رہتے تھے، مگر وہاں بھی جیسے ہمارے شام میں دیتے تھے ویسے ہی عدالت سے دیتے تھے، مطلب اس میں تفاوت نہیں کرتے تھے. آمدنی تو غریب لوگوں سے بہت کم ہوتی تھی، مگر وہاں حاجت زیادہ ہوتی ہے، ضرورت زیادہ ہوتی ہے، وہاں بھی ہر جگہ جو ہے بہت مساوات کے ساتھ دیتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اسی لیے جو ہے وہاں ہم کم دیں گے ویسے نہیں بولتے تھے. انشاءاللہ تو باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. سر تو محمد صاحب تو کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ صحیح نا کارنامے سب کیا سب ایک بار اور بولیے گا. جی حضرت ابو بکر کے جو کارنامے سب تھے وہ سب کیا رہے ہیں، ایک بار اور بولیے. تمہاری آواز کٹ رہی ہے. سمجھ لیا. انجازات ابی بکر میں سب سے پہلے انجازات یہ بولیں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فوج کو ارسال کیے تھے جو بہت چھوٹے نوجوان تھے، اسامہ، بہرحال کہ ان کے اوپر اعتراض تھے، وہ جونیئر ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں، مگر ابو بکر نے انہی کو لیڈر بنا کے، قائد بنا کے موتا کی طرف بھیجے، فلسطین کی طرف. اس کے بعد جو بات ہوئی، اسلام کو بہت بڑا خطرہ تھا کہ مرتدین کی وجہ سے شام میں اور عراق میں اور فلسطین کے بارڈر میں اور یمن میں وہاں جو جنگیں ہوئی تو اعلان جنگ بھی انہوں نے کیا، اور وہاں کے جو افواج ہیں، فوجی لوگ ہیں، انہوں نے جا اور نبوت وہ ایسا ویسے لوگ ان کو مطلب قتل کر دیے. حروب الردہ اس کے ایک ٹائٹل ہے، دے سکتے ہیں، حروب الردہ. اور اس کے بعد میں جمع القرآن میں ہم یہ بولیں، ہاں، جنگ حروب الردہ کے ایک حصہ تھا یمامہ کی جنگ. یمامہ کی جنگ میں کچھ کافی لوگ شہید ہو گئے، ان میں سے حفاظ اکرام بھی تھے. تو حضرت عمر کے اصرار سے حضرت ابو بکر نے جمع القرآن کی بندوبست کی، جس میں قرآن کو ایک ہی کاپی میں زید بن ثابت نے کر دیا. اس کا جمع القرآن کا حصہ. اور اس کے بعد ہم بولے شام میں نصرانیت جاری تھی، اور عراق میں
वो किसरा या फारसी सल्तनत जारी थी, वहाँ कुछ कबीले इस्लाम से इनकार कर दिए और कुछ कबीले इस्लाम को कबूल कर लिए और कुछ कबीले इस्लाम को या दार सल्तनत को जिजिया देने को तैयार रहे। बस वही बात थी। और उसके फौरन बाद तो इनको बीमारी सख्त शदीद हो गई और इनकी वफात हुई। इंशाअल्लाह वो आगे चल के बोलते हैं इंशाअल्लाह। ये एक सवाल है ताज़ीम जी, हजरत अबू बकर को जब खलीफा बनाया गया तो रसूल के कितने दिनों बाद बनाया गया, और क्या कुरान से कोई बनाया गया कि लोगों की राय पर? नहीं, इसमें खिलाफत का कुरान से कोई सबूत नहीं मिलता। कुरान में जो सबूत में वो मिलता है वो इन्नी जाइलुम फिल अर्द खलीफा, बस वही है। मगर हुजूर के आखिरी जिंदगी में उन्हीं को इमामत किए थे, उन्हीं को बढ़ा के। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिहराब में बैठ के नमाज पढ़ते थे, तो लोगों के सामने खलीफा इमाम हजरत अबू बकर ही रहे। तो लोगों के दिल में खिलाफत का जो तस्वुर था उसमें अबू बकर का ही मतलब नाम था, इसीलिए सब अबू बकर ही को पूरे लोग ने बायत की। मतलब सर बात ऐसी है कि उस वक्त मतलब जो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खास बंदे थे, बचपन के दोस्त थे। और ये वो लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना रह गया और फिर लोगों ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को चुन लिया जी। और इसमें एक बहस आता है इंशाअल्लाह, वो हम तो हमारे इसमें असाइनमेंट्स में दिए हैं, लिमादा तखल्लफ अली अन बैअत अबी बकर। उसमें ये सब बहसें आते हैं, मतलब अबू बकर की खिलाफत को क्या अबू अली नहीं मानते थे? क्या अली ने बैअत किए? कब किए? कितने महीने के बाद किए? और इसकी क्या वजह थी? उसमें शिया लोगों की तावील अलग है, सुन्नी लोगों की तावील अलग है, और मुअर्रिखीन की तावील जस्टिफिकेशन अलग है। वो किसका ज़िम्मे में है? लिमादा तखल्लफ अली अन बैअत अबी बकर। कुछ मौज़ूआत हम बांटे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो मिले हैं ना? कल आपके ग्रुप में डाले थे सर। समझ नहीं आ रहा, मतलब कि कुछ आप चाहते हैं कि मतलब हम लोग पर्सनली ले और उसमें से जो पर्सनली ना ले वो एक डिबेट बनाकर करें सभी। एक आपने पर्सनल असाइनमेंट दिया, एक ग्रुप असाइनमेंट दी है, सही है? हाँ, डिबेट तो मतलब कभी कभार होता है। ये असाइनमेंट ये है मतलब सबको करना है, ऑफिशियली उसको नोट करना है, उसके इवैल्यूएट करना है, उसके नंबरात भी देना है। ये तो डिबेट तो हो गया है ना। परफॉर्मेंस में वो शामिल आते। परफॉर्मेंस का आपका 2 नंबर है हर सेमेस्टर में, परफॉर्मेंस का 2 नंबर है, हाजिरी के 3 नंबर है, और 10 नंबर जो है आपके असाइनमेंट का सी मार्क्स जिसे कहते हैं। वो असाइनमेंट में आपको आपके जिम्मे में जो मौजू मिला है, जो टॉपिक मिला है, उसमें आपको बहस करना है और उसमें मजमून लिखना है, उसको खुलासा करके पीपीटी में पेश करना है इंशाअल्लाह। समझे? अगले साल पीपीटी सिर्फ नहीं, अगले साल उसको पेपर में भी पेश करना होगा। इन साल में इंशाअल्लाह आप जो है 5 स्लाइड बनाइए पीपीटी, उस खुलासा करके इंशाअल्लाह। हेलो सर। बोलिए उसामा। सर हमारे पास कोई असाइनमेंट नहीं आया अभी तक। एक वक्त में एक आदमी बोलिए। मेरे पास अभी कोई असाइनमेंट नहीं आया। असाइनमेंट नहीं आया? आप जो है ग्रुप में देखिए, तारीखुल खुलफा। अच्छा, तो दोबारा डालते हैं इंशाअल्लाह। मेरे पास
आप जो है अपने आपस में मुशावरत करके एक एक टॉपिक को मतलब चुन लीजिए और उसमें आप मुताला कीजिए। आप जो ग्रुप में पूछिएगा, अभी हमारा एक क्लास है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।